নমস্কার, নিউজ প্রাইমে আপনাদের স্বাগত। আমি সঞ্জয় রয়েছি আপনাদের সাথে। নিউজ প্রাইম শুধু যে রাজনৈতিক খবর বা সাংস্কৃতিক জগতের খবর করে তা নয়, বরাবরই একটু অন্য ধরনের খবর করতে ভালোবাসে। আজ আপনাদের সামনে ঠিক সেই ধরনের একটি খবর নিয়ে এসেছি। ভিভেক স্টুডিও এক অতি পরিচিত নাম ইন্টেরিয়ার ডিজাইনিং এর ক্ষেত্রে। তাসে মুম্বাইয়ের একটা স্লিক ফ্ল্যাট হোক, মানে ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট হোক, কিংবা দিল্লির কোনো একটা ঝাঁ চকচকে রিটেল আউটলেট হোক, অথবা মধ্যপ্রদেশের কোনো একটা আহ, কি বলবো, মধ্যপ্রদেশের কোনো একটা শপিং মল হোক, কিংবা কলকাতার কোনো একটা লাক্সারিস ফ্ল্যাট হোক, কিংবা কোনো রেস্টুরেন্ট হোক, ইত্যাদি ইত্যাদি, অর্থাৎ সব থেকে শপিং মল, যে কোনো ধরনের ইন্টেরিয়রের ক্ষেত্রে বিবেক স্টুডিও আজকে এক প্যান আমেরিকান নাম, এই প্যান ইন্ডিয়ান নাম, কারণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে তার কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে। এটা হতে বেশি দিন হয়নি, কারণ 11 বছর 5 মাস রানিং। 2014 সালে বিবেক ভগত, যিনি ইন্ডিয়ান ফিনান্সিয়াল, এই চার্টার্ড ফিনান্সিয়াল অ্যানালিসিস্ট ইন্ডিয়া নামক একটি সংস্থা, এবং যেটা আইবিএস এর আন্ডারে, সেই আইবিএস থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেছেন, যিনি এনএসই অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে ইনভেস্টমেন্ট এবং পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টের সার্টিফিকেট অর্জন করেছেন, যিনি এই ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে ডেরিভেটিভের বিষয়ে আহ, মানুষকে পরামর্শদাতা হিসাবে তার সার্টিফিকেট অর্জন করেছেন। শুধু যেই সার্টিফিকেট বা একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন ব্যাপারটা এরকম নয়, কারণ তিনি আদ্যন্তে একটি অর্থনৈতিক জগতের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, তার অর্থনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ডের তার সার্টিফিকেটস। কিন্তু তিনি ঠিক করলেন একটু অন্য ধরনের কাজ যদি সমাজে করা যায়, নিজের স্টার্ট আপ। সেটা করতে গিয়ে তার আগে তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হিসাবে আইডিয়াল ইউনিক রিলেটার্স এর সাথে কাজ করলেন, তিনি রিলায়েন্স লাইফে কাজ করলেন, অর্থাৎ এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের ইন্ট্রাসফট টেকনোলজির সাথে কাজ করলেন, অর্থাৎ এই ধরনের বিভিন্ন সংস্থায় তিনি কাজ করে নিজের অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন, এবং সেই সঙ্গে এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে, তার এই যোগাযোগটাকে কাজে লাগিয়ে তিনি শুরু করলেন বিবেক স্টুডিও 2014 সালে। এই বিবেক স্টুডিও আজকে একটি অতি পরিচিত নাম, এবং তার পেছনে যে নিরলস প্রচেষ্টা, নিরলস পরিশ্রম এবং তার অভিজ্ঞতালব্ধ যে তার জ্ঞান এই ইন্টেরিয়র ডিজাইনার ক্ষেত্রে, সেটাকে একদম সুচারুভাবে মানুষের মধ্যে তিনি ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন, যার জন্য মানুষ এখন তাকে খুঁজে। তার নাম विवेक भगत। এই মুহূর্তে রয়েছেন আমার সাথে, কথা বলে নেব তার সাথে। विवेक जी, सबसे पहले तो न्यूज प्राइम में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आप एमबीए किए हो फाइनेंस के ऊपर, लेकिन आप करते हो इंटीरियर डिजाइनर। ये मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको इंटीरियर डिजाइनिंग करने के लिए, यानी कि इस फील्ड में आने के लिए? सर, सजाना अच्छा लगता है, इंसान के हिसाब से सजाना अच्छा लगता है, इसलिए ये लाइन चुना। और रहा बात फिनेंशियल एजुकेशन का, तो आज कोई भी एक इंसान अपना एक फ्लैट लेता है या अपना एक छोटा सा ऑफिस बनाता है, तो उसके पीछे मनी कम्स इन द पिक्चर। तो आपके पैसों का वैल्यू मैं समझ सकूं, मैं उसको बेटर यूज में कर सकूं, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। वो किया, उसी लिए किया कि आई अंडरस्टैंड योर मनी बेटर, आई अंडरस्टैंड योर पॉकेट बेटर, एंड आई डू स्टफ एज पर योर पॉकेट। वेरी ट्रू सर, बट एक क्वेश्चन मन में आ ही रहा है, क्योंकि आप जो अभी बताए कि आप सामने वाले का फिनेंस आप समझ सको, उसको सही तरीके से यूज में ला सको, तो आप फिनेंस मैनेजमेंट नहीं करके इंटीरियर डिजाइनिंग में क्यों चॉइस किए? सर, जैसे आपने बताया, मैं आइडियल ग्रुप में काम करता था, तो जब मैं वहाँ काम करता था तो आई हैड नो नॉलेज अबाउट कंस्ट्रक्शंस और इंटीरियर्स, so I was there as a store person in start, then I grew up to be project in charge and so on. So I used to see people work there. तो किन्हीं का फ्लैट इंटीरियर होता था, किन का कुछ काम होता था, कुछ काम होता था, तो मैं वहाँ खड़े रहता था, मैं खड़े रह के चीजें देखता था कैसे होती है, क्या होती है, कहाँ मिस्त्री गलती कर सकता है, कहाँ मिस्त्री अच्छा एक आउटपुट दे सकता है। फिर वो जो चीजें, एक तो बेयर फ्लैट,
एक खाली आपका रूम से जो चीज टर्न आउट होके इतना सुंदर निकल के आता था, जिससे आप खुद कनेक्ट हो सकता है। आज आप थक जाता तो आप एक ढूंढता है कि हम वेकेशन पे जाए, एक होटल रूम में रहे। वो होटल रूम से आप 3 दिन में बोर हो जाएगा। लेकिन आप जो वो चीज अपना घर पे बनाता है, अपने हिसाब से बनाता है और खुद आप उससे कनेक्ट कर पाता है, तो आपको वो बहुत अच्छा फील देता है। तो वो जब मैं काम वहां पे खड़ा हुआ देखता था कि वो कैसे होता है, कैसे चीजें शेप में आती है ना, तो मुझे वो चीज अच्छा लगा। तो मुझे वो चीज अच्छा लगा, मैंने खड़े होकर वो सारा काम सीखा। कैसे एक मिस्त्री का काम होता है, कैसे एक कारपेंटरी काम करता है, कैसे एक मेसन काम करता है, कैसे एक टाइल्स वाला काम करता है, कैसे एक डिजाइनर का रोल होता है, एक सुपरवाइजर क्या करता है। बस फिर स्टार्ट किया। यानी कि आप पैशन से प्रोफेशन में आ गए हैं। तो यही से मेरा अगला सवाल है, सर आप लोग का जो यूएसपी एंड स्लोगन है वो है, वी डोंट शेप क्रिएट स्पेसेस, वी क्रिएट स्टोरीज। इसका मतलब अगर समझा दीजिएगा। सर एक आप जब बेयर फ्लैट लेते हो या आप एक बेयर ऑफिस स्पेस लेते हो, তো जैसे আপনি তো একটা কাজ করছেন, আপনার নিজে একটা অফিস আছে, তো আপনি যখন অফিস ওনাকে বলছেন তার আগে তো সেটা একটা রুম হয়েছে, রুমকে তো আপনি অফিস তৈরি করেছেন। আপ মানু আপনার কোম্পানির নাম হচ্ছে নিউজ প্রাইম। তো নিউজ প্রাইম কেউ ঢুকছে, তো যখন সে রুমের ভিতরে ঢুকছে, ও নিউজ প্রাইম কি করে বুঝবে কি এটা নিউজ প্রাইমে অফিস আছে? আজকে নিউজ প্রাইমে একটা লোগো আছে, তার মধ্যে একটা কালার হচ্ছে হোয়াইট, একটা হচ্ছে ব্ল্যাক, একটা হচ্ছে হলুদ রং। সে অনুযায়ী আপনি যখন রুম আপনি তৈরি করবেন, সে আপনি টাচ দেবেন, বিভিন্ন টাচ দেবেন, তো আপনি জানতে পারবেন আচ্ছা এটা নিউজ প্রাইমে অফিস আছে। যেমনি আপনার বাড়ি হচ্ছে, তো আপনি তো একটা লোক আছেন, আপনার একটা কমফোর্টেবল জোন আছে, আপনি কিছু লাইক করতে পারেন, কিছু লাইক না করতে পারেন। তো আজকে আপনার রুম হচ্ছে, একটা আমার রুম হচ্ছে। উম, মনে করুন আপনি 4 লাখ টাকা খরচা করছে চাইছেন, আমিও 4 লাখ টাকা খরচা করছি, রুমের সাইজ একটাই 100 স্কোয়ার ফিট। लेकिन যেটা আপনার রুম হবে, যেটা আমার রুম হবে, তো এটা একদম আলাদা হবে। কেন আলাদা হবে? क्योंकि আপনি एज अ पर्सन डिफरेंट, मी एज अ पर्सन इज डिफरेंट। इसका मतलब कि आप लोग जो बनाते हो या इंटीरियर डिजाइनिंग करते हो वो कस्टमर का पर्सनालिटी का हिसाब से करते हो और उसका जो मतलब स्टेटस है उसका हिसाब से करते हो। राइट। जैसे मैं बहुत बोलता हूँ कि वी डोंट डू इंटीरियर, वी पर्सोनिफाई इंटीरियर्स। दैट मीन्स कि आपके अनुसार मैं आपका काम करता हूँ। आज अगर रूम में 4 हैं, अगर आप अपना वाइफ के संग एक रूम शेयर करता है, तो दैट इज रूम इज नॉट ओनली एज पर योर चॉइसेस, but as a couple choice, what you both like and what you both don't like. So that's why we say we don't shape things, we create stories. See, it's very easy to shape things. You go there are many furnishing houses, you go buy stuff, just bring it in and just place it. Shape ले लेगा सर आपका. You don't need us. You don't need any interior designer. तो विवेक जी, ये जो आप बहुत अच्छा बात बोले आप कि पर्सनालिटी के हिसाब से आप डिफाइन करते हो आपका इंटीरियर का हिसाब से। तो ये जो हर्डल है 11 साल का, 11 साल में जो बुलंदी पे आज विवेक स्टूडियो आया है, ये तो इतना आसान नहीं था। क्योंकि आज का दौर में एक स्ट्रीम चेंज करके दूसरा स्ट्रीम में पैशन को प्रोफेशन बनाने के लिए जो मेहनत लगता है, जो स्ट्रगल लगता है, वो तो विवेक स्टूडियो का भी शायद था। तो ये इसका विषय में अगर आप कुछ बोलिएगा तो। सर ऑनेस्टली काफी प्रॉब्लम्स हुआ था। काम एक होता है आप एक जगह रह के काम सीखते हो, और एक होता है आप सब कुछ छोड़ के खुद से वो काम में लग के और खुद आप सीखते हो, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है सर। हाँ, थोड़े हार्डशिप्स थे, बहुत टाइम होता था जब अकेला फील भी करता था, खुद सब कुछ करना पड़ता था, बट दैट्स पार्ट ऑफ द स्टोरी। अगर आप कुछ खुद नहीं करेगा, वो स्ट्रगल नहीं करेगा, तो आज आप कितना भी सक्सेस हो जाओ, आप उसको वैल्यू नहीं कर पाएगा। So I believe that's how every big thing happens, that you grind yourself. You जैसे my mother used to tell me कि चटनी का अगर स्वाद अच्छा करना है तो उसको बहुत अच्छे से पीसना पड़ता है। So that was part of the story. See, in order to make something good, you need to grind yourself better. यानी कि जितना घिसोगे पिसोगे उतना ही बुलंदी छुओगे। ये तो ठीक है, लेकिन ये जो आप अभी बताएं कि पहले हार्डशिप था,
लेकिन आप लोग जो करते हो, आप लोग से मुंबई का स्लिक फ्लैट हो या मतलब पैन इंडियन काम करते हो, अलोंग विथ जो बिग हाउस है पैंटालून्स, तो ये बुलंदी तक आप कैसे पहुंचे कि पैंटालून्स आपको ढूंढता है? मतलब आप आपका काम से अट्रैक्ट कर रहे हो शॉपिंग मॉल्स लाइक आदित्य बिरला ग्रुप, ताकि आपको खोजे, विवेक भगत को खोजे या विवेक स्टूडियो को खोजे टू इंटीरियर देयर शॉपिंग मॉल्स लाइक पैंटालून्स। ये कैसे हुआ? इंटीरियर डिजाइनिंग खाली डिजाइन एस्पेक्ट नहीं होता है। आज आप जब किसी का काम लेते हो या जब आप काम करते हो तो उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती है। एक प्लम्बर का जो अपना टेक्निकलिटीज होता है, एक इलेक्ट्रिशियन का अपना टेक्निकलिटीज होता है, एक कारपेंटर का अपना टेक्निशियलिटी होता है, और एक टेक्निशियलिटी होता है कि आप जब सबको लेके काम कर रहे हो, जब आप सबको लेके काम करते हो तो आप कैसे, कौन सा स्टेप कैसे 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 ताकि आपका काम नहीं अच्छा हो। शायद पेंटालून्स इसलिए चुना था मेरे को। सर, बहुत सारे इंटीरियर्स हैं, आदमी पैसा भी खर्चा करते हैं, कुछ हद तक आदमी खुश होता है, कुछ हद तक आदमी उतना सेटिस्फाई नहीं होता है आफ्टर दे हैव डन देयर जॉब। ये विवेक स्टूडियो का यूएसपी क्या है कि ये अपना काम जो लेबर लोग कर रहा है वो खुद से चेक करता है और उसका एलिजिबिलिटी टेस्ट करके ही काम में लगाता है, ताकि पहले खुद सेटिस्फाई हो फिर उसके बाद क्लाइंट। आप क्या सहमत है इस? जी सर, हम लोग मतलब डे वन से जब हम लोग का मटेरियल सिलेक्शंस होता है तब से लेके जब तक हम लोग हैंड ओवर करते हैं, वी आर ऑन आवर फुट। इट्स लाइक कि, लाइक आई टेल्ड यू, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, आप जो भी पैसे लगाते हो वो पैसे आपके नहीं होते, वो मेरे होते हैं। मैं ये सोच के वो काम करता हूँ। आज मैं अगर क्लाइंट होता, कोई इंटीरियर मेरे लिए काम कर रहा होता, तो वो पैसे की एक वैल्यू होती है। आज कोई 3 BHK फ्लैट लेता है या 2 BHK फ्लैट लेता है, या कोई स्टार्टअप आज कोई नया ऑफिस स्पेस लेके अपना काम चालू करता है, तो उसके पीछे खाली पैसे नहीं होते, एक सपना होता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा ऑफिस है, आई वॉन्ट टू ग्रो बिगर। तो वो सपने को टूटना और वो या उस पर कुछ 19-20 होना या कुछ भी किंतु परंतु होना, वो एज ए पर्सन मुझे नहीं अच्छा लगेगा। कोई अगर मेरे संग करेगा तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा, तो एज ए प्रोफेशनल मैं किसी के संग नहीं करने हो सकता। सो वी ऑलवेज डू, वी हैव आवर रेगुलर चेक सिस्टम्स, we are very professional with that. We have regular check system as and when the work progress we implement those check systems, those अगर वो काम चेक सिस्टम में पास होता है तभी वो नेक्स्ट स्टेप में जाता है। ये तो आप जैसे अभी बताए ना कि चेक सिस्टम में जाते हैं, जो क्लाइंट का मनी है वो वर्थ हो, उसका वर्थ यूटिलाइजेशन हो, यही आप लोग चाहते हैं। तो मुंबई का एक स्लिक फ्लैट, उसका जो बजट है या उनका जो बजट है, पैंटालून्स लाइक बिग शॉपिंग मॉल्स, उनका वो बजट, उनका वो हैसियत नहीं है। तो ये दोनों में आप कैसे मैच करते हो? क्योंकि आप ही वही आदमी हो जो उनको भी सेटिस्फाई कर रहे हो, उनको भी सेटिस्फाई कर रहे हो। इनका इसका यूएसपी क्या है? सर दोनों का स्पेसिफिकेशंस अलग होता है। बीइंग अ पैंटालून, उनका एक अपना ऑलरेडी ब्रांड बना हुआ है, सो दे आर वेरी कट टू कट क्लियर स्पेसिफिकेशन, मेरे को ऐसी चाहिए, ऐसे ऐसा है। वी जस्ट नीड टू डिजाइन इट, वी नीड टू शेप इट, वी नीड टू क्रिएट अ स्टोरी एज पर देयर ब्रांड। आज उनका जितना भी आउटलेट है वो डिफरेंट साइजेस के हैं, उनका डिफरेंट क्राइटेरिया, उनका डिफरेंट क्लाइंट टारगेट सेगमेंट्स है, बस उसके हिसाब से हमें वो काम करता है। बट एज एन इंडिविजुअल, एज ए एंड क्लाइंट जो होता है, तो उसमें चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती है। उसमें आप स्पेसिफिकेशंस दे रहे हो, आप उनके हिसाब से चीजें करो। जैसे हम कोई भी नया प्रोजेक्ट लेते हैं, वी बेसिकली डिस्कस विद क्लाइंट्स की व्हाट दे वांट, हाउ दे थिंक, उनका क्या सोच है। जैसे अभी रिसेंट में जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, जितने भी डिस्कशंस होते हैं, सो हंसू या नहीं पता नहीं, लेकिन दे शो अस रील्स कि ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे अच्छा लगा। सो दे ऑलरेडी हैव 10 ऑप्शंस बिफोर इवन दे स्टार्ट डिस्कशिंग। तो उन्हें वो चीज समझाना कि मैम सर आपका ये वॉल है, इस पे ये जो आप हमको फोटो दिखा रहे हो ये चीज अच्छा लगेगा, लेकिन इसके संग आप ये भी करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। या ये आपका वॉल का साइज छोटा है, आप इस पे ये चीज पूरा पोर्ट्रे करोगे तो आपका जगह छोटा लगेगा। क्योंकि आज कैलकाटा में अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो 2 रकम के काम होते हैं। एक, जहां पे स्पेस कम है येट आपको सब कुछ चाहिए। 2, जहां पे आपका पूरा विला है, आपको वो ओपननेस चाहिए, वो लग्जरी चाहिए, येट आपको दिखे नहीं कि ये भर्ती है आपका। सो वी हैव सिस्टम्स एंड वी हैव पीपल हु डिजाइन एज पर दैट स्पेस।
अगर आज वो स्पेस हम लोग उस हिसाब से डिजाइन नहीं करेंगे तो वो लगेगा कि आप बस बाजार से खरीद के लाए हो, आपने जगह जगह रख दिया, तो फिर उसमें मेरा कोई काम नहीं। तो यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि आज आप जो काम कर रहे हो, मतलब आपका लड़ाई ना केवल क्लाइंट को समझाना है बल्कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस से भी है। कि क्लाइंट आपको 10 ठो रील दिखा के पूछता है कि ये अच्छा लगता है, उससे उनको समझाना पड़ता है आपको कि भाई ये आप करोगे तो ये इसका डिसएडवांटेज है और ये करोगे तो ये आपका एडवांटेज है। मतलब आपका लड़ाई अभी सिर्फ आपका क्लाइंट से नहीं, क्लाइंट मतलब क्लाइंट का दिमाग से नहीं, आपका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से भी है। सर लड़ाई नहीं बोल रहा नहीं, मतलब कंपटीशन, या तो आपको समझाना पड़ता है, एक तो एक्स्ट्रा बर्डन हो गया। सर बर्डन, ये मेरा पैशन है, तो अगर क्लाइंट कुछ लेके आता है कुछ नया, या तो मैं सीख लेता हूँ, दिस ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस दैट समथिंग न्यू इज कमिंग अप, या तो मैं सीख लेता हूँ। और मुझे तो लगता है कि जो चीज बताया जा रहा है ऑन द टेबल, जो डिस्कस हो रहा है, तो या तो मैं बता देता हूँ कि ये चीज आपको नहीं अच्छा लगेगा। तो यही विवेक स्टूडियो का या विवेक भगत का यूएसपी है कि बुलंदी छूने के बाद भी वो एक लर्नर है। सर तो कोई भी सक्सेसफुल पर्सन होगा, तो अगर आप वो अडेप्ट नहीं करेगा तो नोकिया वाला स्टोरी हो जाएगा सर, कि आफ्टर बीइंग अ लीडर इन द मार्केट ही द नोकिया इज आउट ऑफ द मार्केट बिकॉज दे वर नॉट विलिंग टू लर्न। तो विवेक जी, आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करके 11 साल में बुलंदी छुए हो। अभी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप का सोच रहा है या सोच रही है, मतलब अब अभी तो लड़की लोग भी करते हैं। तो जैसे हम लोग का देश का भी नारा है या प्रधानमंत्री जी का नारा है कि वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया, वो कितना इफेक्टिव हुआ है आपका ये स्टार्टअप स्टार्ट करने? और साथ ही साथ आप एक मिसाल हो, क्योंकि फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आके आप आपका पैशन को, अपना पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया और क्लाइंट को सेटिस्फाई करके इस बुलंदी पर पहुंचे। तो ये स्टार्टअप नया एंटरप्रेन्योर के लिए एक मिसाल हो विवेक भगत या विवेक स्टूडियो। आने वाले जो एंटरप्रेन्योर है, जो स्टार्टअप करने जा रहा है, उन लोग के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके? मतलब उनको कैसे आप इंस्पायर करोगे, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन हो उन लोग के लिए, क्योंकि शुरू में आप ऐसे नहीं थे, आप दूसरे एक बैकग्राउंड से थे, लेकिन आप आपका पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया और वहां से वेरी हार्डशिप्स को सामने रख के वो सब स्ट्रगल करके आप इस जगह पर पहुंचे। तो आने वाले एंटरप्रेन्योर को क्या मैसेज? सर मुझे नहीं लगता कि मैं उतना बड़ा इंस्पिरेशन हूँ अभी। अभी लाइफ में बहुत कुछ अचीव हो, बहुत कुछ करना, बहुत कुछ सीखना अभी भी बाकी है मेरे लिए। और रहा आप जो बोला ग्राइंडिंग और उसके लिए, अगर आप अपना पैशन फॉलो करता है तो लाइफ में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, आपको कितना भी ग्राइंड करना पड़े, दैट विल बी वर्थ। लेकिन आप जो काम करते हो वो आपको पसंद ही नहीं है, तो फिर आप कितना भी आपका जर्नी स्मूथ, आप एंजॉय नहीं करेगा। सो हमको आज तक कभी फील नहीं हुआ कि आई बीन ग्राइंडेड और समथिंग, और क्योंकि मैं जो भी करता था मुझे अच्छा लगता है, आज भी मेरे को अच्छा लगता है। बीइंग एन इंटीरियर डिजाइनर, आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में कितना पॉसिबिलिटीज? बहुत, बिकॉज आज भी मैं दुकानें जाता हूँ, आज भी मैं स्टोर्स विजिट करता हूँ, आज भी मैं शोरूम्स विजिट करता हूँ, एंड टेक्निकली स्पीकिंग अभी भी मार्केट में इतना नया नया मटेरियल आ रहा है, इतना नया नया चीजें आ रही है, दैट लर्निंग इज लाइक यू कैन नॉट स्टॉप लर्निंग। जो पहले लाइट्स आते थे सर, आज आप स्टूडियो में बैठो, आप देखो अभी सीलिंग का डिजाइन अलग हो गया, लाइट्स अलग हो गया, नेक्स्ट नॉट इवन अ ईयर, आप 4 महीना वेट करो, आपका डिजाइन अलग हो जाएंगे, डिजाइन अलग होंगे, उनके इम्प्लीकेशंस अलग होंगे, नंबर ऑफ लाइट्स कम हो जाएंगे। जैसे अभी बहुत बड़ा चीज आ रहा है, दैट इज इको फ्रेंडली थिंग्स एंड एनर्जी सेविंग थिंग्स। हाउ डू यू डू इट? सर आप तो सरफेस के बारे में बोल रहे हो कि लाइटिंग वगैरह वगैरह, लेकिन आपको नहीं लगता है क्योंकि आज जो लेबर है उनका लड़का भी पढ़ के कुछ बनना चाहता है, मतलब वो लेबर नहीं बन रहा है, वह बनने का ख्वाब नहीं रखता है, तो इसलिए लेबर प्रॉब्लम नहीं लगता है आपको? नहीं सर, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत सारे लेबर्स को जानता हूँ और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को जानता हूँ जो खाली टाइल्स घिस घिस के
या लेबर का मशीन काट काट के आज उनके पास करोड़ों का जमीन है. आई इवन नो अ मोड़ी वाला हु हैज अ बंगलो इन अलीपुर, बट ही ऑब्वियसली कैन नॉट शो इट. वो उनसे मोड़ी खरीदने कोई नहीं जाएगा फिर. सो ऐसा नहीं है कि जनरेशन लाइन छोड़ दे रही है, नहीं, जनरेशन लाइन नहीं छोड़ रहे. दे आर पीपल हु आर स्टिल विलिंग टू वर्क, हु आर स्टिल विलिंग टू लर्न फ्रॉम अस. मेरा कहने का मतलब ये था कि कहीं कहीं देखा जाता है कि कुछ लेबर लोग वो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, मतलब एक एक अनहेल्दी कंपटीशन का तरफ थोड़ा थोड़ा धकेल देता है कभी कभी, हर वक्त नहीं. और आप जैसे विवेक स्टूडियो को नहीं, लेकिन छोटा मोटा जो एंटरप्रेन्योर है उन लोग को तो ये फेस करना ही पड़ता है. सर सबको फेस करना पड़ता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आज आप मकान बनाने जा रहे हो, आप स्टूडियो से कोटेशन लोगे और एक जो कारपेंटर जो कॉन्ट्रैक्टर में टर्न अप हो गया आप उससे कोटेशन लोगे, तो कोटेशन में फर्क आएगा. और वो कोटेशन में फर्क इसलिए आएगा क्योंकि क्वालिटी में फर्क है, काम का समझ में फर्क है. आज वो जो चीज लगा के देगा और आज जो विवेक स्टूडियो आपको लगा के देगा या कोई भी अच्छा डिजाइनिंग फर्म आपको लगा के देगा, उसमें बहुत फर्क है. आज खाली लगाने का बात नहीं, उसका एप्लीकेशन, उसका डिजाइनिंग, सब में फर्क है. सर आप कुछ भी कर लो, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है. बहुत, मैं नहीं बोलूंगा कि सब कॉन्ट्रैक्टर वैसे होते हैं. बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो अपने आप को उठा लेते हैं, अपने आप को उस काबिल बना लेते हैं कि दे आर एबल टू डू गुड वर्क फॉर यू. तो जब वो कॉन्ट्रैक्टर उस काबिल बन जाता है तो उसका रेट में हमारे रेट में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा सर. बिकॉज सी, अ फ्लैट कैन बी टर्न्ड or a office can be done in 800 square feet also, 800 rupees per square feet also, and for a client it can be like 1500 is also. We are someone ki if you want to pay us 800 per square feet, we will do that much amount of work which is quality and which is justified in 800 rupees per square feet. We don't believe in quantity, we believe in quality. आप मेरे को, आपका बजट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आपके बजट में जितना क्वालिटी वाइज आपके लिए जो अच्छा होगा, वो जो काम हो सकता है वो हम करने को तैयार हैं. लेकिन खाली आपका काम लेने के लिए हमें वो काम करना है नहीं. न्यूज प्राइम के दर्शकों के लिए और आने वाले एंटरप्रेन्योरों के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो सर यही है कि कीप एंजॉयिंग, कीप लर्निंग एंड कीप लिविंग. অর্থাৎ মাথাটা আকাশে ছুলেও পাটা মাটিতে আছে বিবেক ভগতের, কারণ তিনি এখনো নিজেকে একজন শিক্ষার্থী বলে ভাবছেন. তিনি এখনো ভাবছেন যে আমি এখনো রোজ শিখছি, রোজ মার্কেটে যাচ্ছি, রোজ নতুন নতুন জিনিস আসছে, রোজ শিখছি. কিন্তু যেটা ওনার ইউএসপি সেটা হচ্ছে উনি সংখ্যায় বিশ্বাস করেন না, উৎকর্ষে. অর্থাৎ দে ডোন্ট বিলিভ ইন কোয়ান্টিটি, ওনলি বিলিভ ইন কোয়ালিটি সার্ভিস. এবং সেই সঙ্গে এটাও জানাচ্ছেন যে যদি একটা 150 স্কোয়ার ফিটের ছোট্ট ঘর হয় অথবা একটা 15,000 স্কোয়ার ফিটের বড় মল হয়, দুটোই তারা সমান কোয়ালিটি দিয়ে করবেন যেটা প্রয়োজন. কারণ তারা জায়গা বের করেন না বা জায়গা তৈরি করেন না, তারা গল্প লেখেন যাতে সেই 150 স্কোয়ার ফিট বা 15,000 স্কোয়ার ফিট সেই মানুষ যারা এটা ওনার ওন করছেন, যারা এটার মালিক, তাদের পার্সোনালিটির সাথে খাপ খায় এবং তাদের যে ভাবনা, সেই ভাবনা যেন ওই ইন্টেরিয়র ডিজাইনের মাধ্যমে ফুটে বেরোয়, যেটা মানুষ বুঝতে পারবে. এটা অনেক বড় ভাবনা যে উই ডোন্ট ক্রিয়েট স্পেস, উই জাস্ট ক্রিয়েট স্টোরিজ দ্যাট অ্যালংস স্টার্টস ফ্রম দ্য ক্লায়েন্ট অ্যান্ড এন্ডস টু দ্য ক্লায়েন্ট. অনেক বড় ভাবনা. নিউজ প্রাইমের তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা রইল এই বিবেক স্টুডিওর জন্য এবং তার ফাউন্ডার ইন্টেরিয়র ডিজাইনার বিবেক ভগতের জন্য. ভিডিও জার্নালিস্ট নিউজের সাথে নিউজ প্রাইমের জন্য সঞ্জয় সাহা।